ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। তো বাবা বলছেন, বাবা নিজের বাচ্চাগুলোকে তৈরি করছেন যাতে সব মানুষ আত্মাদের কর্মের হিসাব কিতাবের বন্ধন থেকে যে মুক্তি পাচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরকে সেখান থেকে লিবারেট করার জন্যে, উদ্ধার করার জন্যে, নাকি আবার ওদের কর্মবন্ধনে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ব, নিজের হিসাব কিতাব তৈরি করব, নতুন করে হিসাব জোড়াবো, ওটার জন্যে নয়। তাই না? তো বুঝতে পারলেন, কালকে ভিডিও পাঠিয়েছিলাম, সবাই দেখেছেন, তাই না? তো কর্মবন্ধনে কারো নতুন করে হিসাব জোড়ার নেই, বরং অন্যদের হিসাব চুক্তি করার জন্যে ওদেরকে মনসা সেবা করতে হবে, তাই না? प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन प्रैक्टिस करते থাকলে आत्मा खूब शक्तिशाली हो जाए। उत्तर, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो, अर्थात एक बाप की याद में रहो। अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। তো বাবা বলছেন, আত্মার ভিতরে পাওয়ার কখন আসবে? যখন দেহ থেকে ডিটেচ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে তো দুনিয়াতে সিস্টেম আছে, প্রকৃতি আর ভগবান বানিয়েছেন। মানুষেরা যখন ঘুমায় তো শক্তি আবার ফিরে পায়, ওয়াপিস আবার চলে আসে, কেননা ঘুমের সময়ে আত্মা শরীর থেকে অটোমেটিক ডিটেচ হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন, যদি চলতে ফিরতে ডিটেচ হবার অভ্যাস থাকে তাহলে সারাক্ষণ आत्मा पावर पेते থাকবে। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। तो सारा दिन নিজেকে কি মনে করিয়ে দেব? অ্যাটেনশন প্লিজ। কিসের উপরে অ্যাটেনশন? আমাকে দেহ থেকে ডিটেচ आत्मा होते হবে, शांत स्वरूप आत्मा होते হবে। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो,
बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। तो बाबा बोलছেন বারবার নিজেকে আজকে অ্যাটেনশন দিতে হবে। অ্যাটেনশন প্লিজ, তাই না? এক, দেহ থেকে ডিটেচ শান্ত স্বরূপ আত্মা আছি কিনা, আর এক, বাবার ইয়াদে আছি কিনা। কেননা বাবার ইয়াদে থাকবো তবে আমার ভিতরের দেব প্রতিমা শতপ্রধান হবে, পবিত্র হবে। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखो শিব বাবা বাচ্চাদেরকে কীভাবে সম্বোধন করছেন, আমার মিষ্টি মিষ্টি লাডলা আদরের বাচ্চাগুলো। यह है सब इस समय की बातें, जो फिर वो उस तरफ ले गए। वो भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, তাই না? ভগবান তার সেনাগুলোকে গুপ্ততে তৈরি করে। তাই জন্যে বলা হলো যে রাবণ বধ করার আগে রামকেও 14 বছর বনবাস, আর মহাভারত হবার আগে পাণ্ডবদেরও, তাই না, তাদেরও 14 বছর বনবাস। তো সেই রকম, কেননা যে বনবাসে থাকবে, আন্ডারগ্রাউন্ড থাকবে, গুপ্ত থাকবে, তো সে পুরুষার্থ করতে পারবে, শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। তো গুম হো जाते हैं। तो बाबा कहते अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, তাই না? যারা স্পেশাল মিলিটারি হয় ওদেরকেও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাই না? যারা বিশেষ বৈজ্ঞানিক হয় তাদেরও আন্ডারগ্রাউন্ড রিসার্চ সেন্টার হয়, তাই না? তো সেই রকম আমরা হলাম বাবার গুপ্ততে তৈরি হবার সেনা। কেননা প্রত্যক্ষ হয়ে গেলে পুরুষার্থে বাধা পড়ে যাবে, তাই জন্যে বাবা আন্ডারগ্রাউন্ড আগে তপস্যা করাচ্ছেন। तुम भी गुम हो जाते अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। श्री बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। তাই না? যেরকম রামায়ণে রাবণ বধের আগে রাম 14 বছর বনবাসে শক্তি সঞ্চয় করলো, তাই না? নতুন নতুন শক্তি পেল, যেরকম পাণ্ডবরাও নতুন নতুন শক্তি পেল, তারপরে মহাভারত যুদ্ধ করলো, দেখানো হলো না? তো আসলে এইগুলো কার ইয়াদগার? বাবার বাচ্চাদের ইয়াদগার। কেননা লাস্ট সময়ের যে পেপার হবে নিজেদের প্রতি আবার অন্যদেরকে উদ্ধার করার প্রতি, সেটাতে বিজয়ী হতে গেলে অনেক শক্তি প্রয়োজন পড়বে। সেইগুলো বাবা এখন গুপ্ততে বাচ্চাদের মধ্যে ভরার পুরুষার্থ করাচ্ছে। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। बिचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। কেন বাবা বলছে বিচারা বাচ্চাগুলো? কেননা সবার কাছে কর্মের হিসাব কিতাবের বন্ধনে ফেসে আছে। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। গতকালও বাবা বরদান দিল না, আত্মাও লাইট আর শরীরও লাইট, লাইট হাউস হয়ে থাকতে হবে। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तो सब समय बुद्धिते की থাকবে? एक परम धाम और दुई कृष्णपुरी सुख धाम। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस होकर रहो। কি হতে বললো বাবা? লাইট হাউস। গত রবিবারের মূল্যও ছিল মনসা সেবার উপরে। তো মনসা সেবার জন্যে বাবা চার্টও দিয়েছে, সারাদিনে চার্টও লিখতে হবে, অনেকগুলো মনসা সেবা করতে হবে। তো সারাদিন কোন স্থিতিতে থাকতে হবে? ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি। তো চলতা ফিরতা কাজের মধ্যে কাজকর্ম করতে লাইট হাউস, মাইট হাউস, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो।
इस दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सेलवेज कौन करे। सबाई भगवान के प्रार्थना करे ना, जे माझी आमार नौको पार লাগিয়ে दाओ। यह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटके पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। তাই না, বলে না বাবা যে যেরকম ওই হাতিম টাইরও খেলা দেখানো হয় না, তো সব মায়া কি করেছিল, সবাইকে উল্টো লটকে দিয়েছিল, কাউকে তাই না ভেড়া ছাগল বানিয়ে রেখে দিয়েছিল। তো তাদেরকে সব, সে ক্ষুধার বান্দা ছিল, সে গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করলো। তো বাবা বলছেন আসলে এমনি তো গল্প তৈরি হয়নি, তো আসলে সবাইকে মায়া কি করেছে, সব বিকারগুলো জঞ্জিরে বেঁধে তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, তাই না। এবার বাচ্চাদেরকে নিজেদেরও মুক্তি পেতে হবে আর ওদেরকেও मुक्ति दीते हैं। अभी तो सब फंसे हुए हैं, बाप को बागबान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं। बाबा बोलছেন बाबा হলো বাগিচার বাগবান মালিক, তো ফুলের বাগান চাই বাবা, তো ফুল হতে হবে, কাঁটা নয়। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি কতটা ফুল হয়েছি, কতটা কাঁটা বাকি আছে। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं आती हैं, वो तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिसकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़े चलती है, राजाएं थोड़े बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो वो नई आत्मा आती हैं। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो देहधारी नहीं हैं, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम हैं। यह तो देहधारी नहीं, डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है, তাই না। যত ধর্মপিতা এলো তারা দেহের মধ্যে আসলো, আবার কর্মের বন্ধনে জড়ালো, দিয়ে তাদের বংশ পরম্পরাও চললো। কিন্তু বাবা বলছেন आदि सनातन देवी देवता धर्मेर स्थापना नीचे शिव बाबा करें निराकार। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो, कि मने करो रूहानी मिलिट्री, शिव शक्ति सेना ना होले पांडव सेना। तो निजे के सेना बोले मने करो, भगवानेर सेना। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, তাই না। পাপ কখন কাটবে, শুধু ভগবান ভগবান বললে হবে না, তাই না, শুধু নাম নিলে হবে না, তাই না। ওর মধ্যে দেখবে আরেকটাও ভিডিও পাঠানো ছিল, শুধু নাম নিলে হবে না, কি করতে হবে, ঘাঁটতে হবে জ্ঞান বিচার সাগর, মন্থন করতে হবে, তবে মক্খন বেরোবে, তাই না। तो यह ज्ञान और कोई को नहीं है, मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं।
हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटेच हो बैठना है, তাই না? বাবা কি তপস্যা দিয়েছেন, শরীরের হাত পা মুড়ে ডিসিপ্লিন করতে বাবা বলেননি, তাই না? সেগুলো তো করবে শরীরের জন্য, কিন্তু আত্মার জন্যে বাবা কি তপস্যা দিয়েছেন, যে দেহ থেকে ডিটেচ, নিজেকে জ্যোতির্বিন্দু আত্মা মনে করে পরমধাম যাত্রা করো, পরমধামে শিব বাবার কাছে বসে আত্মার সাত শক্তিতে ভরপুর হয়ে যাও, তাই না? কখনো কৃষ্ণপুরীকে ইয়াদ করো। তো বাবা এই তপস্যা দিয়েছেন। तो समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटेच हो बैठना है। यहाँ तुमको यह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटेच होकर बैठो, তাই না? বাবাও আমাদের তপস্বী বানিয়েছে, কিন্তু সব দুনিয়ার সব আনন্দের মধ্যে থাকতে মহা আনন্দে তপস্যা করো, কোনো কষ্ট করে নয়, তাই না? শুধু কি তপস্যা, ডিটেচ হতে হবে দেহ থেকে, দেহের দুনিয়া থেকে বুদ্ধিকে ডিটেচ করতে হবে। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है, তাই না? সারা দুনিয়া তো ভাবে এটাই আমার ঘর বাড়ি, তাই জন্যে যখন মৃত্যুর মেসেজ আসে তাদের কষ্ট হয় যে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে কি করে যাব, আমার না। কিন্তু বাবা বলছেন, বাবার বাচ্চারা কি মনে করে থাকে, আমার ঘর বাড়ি না আমার কর্মক্ষেত্র? কি মনে করে থাকে? শিওর কর্মক্ষেত্র মনে করে থাকি না আমার ঘর বাড়ি মনে করে থাকি? কি থাকে? পাক্কা তো একদম গেস্ট হাউস মনে করে থাকি, বেড়াতে এসছি মনে করে থাকি, কাজ শেষ হবে যেতে হবে, তাই না? কোন দিন কার কাজ শেষ হবে কেউ বলতে পারবে না, তাই না? तो और कोई थोड़े समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापिस जा न सके, न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा। অন্তমতি যেন এক বাবার ইয়াদ, আর কারোর কথা মনে না পড়ুক। তো কি প্র্যাকটিস করতে হবে? ও অমুক এই বললো, তমুক এই করলো, এইসব থেকে বুদ্ধি বের করতে হবে। বাবা কি বলেছে আজকে, এটাই যেন বুদ্ধিতে ঘুরে। और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसी को पता नहीं। आवाज़ सुनाई देगा, सो तो ज़रूर आवाज़ होगा ही। इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं, তাই না? গীতার মধ্যে আছে না, কোনো গুরু গোসাই, কোনো ঋষি মহারিষি কেউ আমাকে চেনে না, তাই না? তো ভগবানের ঠিকানা মুঝকো মেরে ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। সে নিজে এসে পরিচয় না দিলে কেউ তাকে পাওয়া ক্ষমতা রাখে না। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। तो কেন শিব বাবা আমাদের হাত ধরেছে এই আসুরি দুনিয়া, বিষয় বিকারের দুনিয়া থেকে আমাদেরকে তুলে নিতে। यह सब बातें समझाने की है। माझी तो जैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वो अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है, তাই না? দেখো আত্মা আছে তো শরীর ঠিকঠাক, যদি
24 ঘন্টা হয়ে গেল, আত্মা বেরিয়ে গেল, তো পচা দুর্গন্ধ বেরোবে, তাই না? এই শরীর 1 সেকেন্ডের জন্যেও রাখা যাবে না। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। বাদরের একটা বাজে গুণ, কোনো বাচ্চা যদি মরে গেল তো মা বাদরটা ধরেই বসে থাকবে, কান্না করতে 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 সে বাচ্চাও গলে সরে পচে মরে যাবে, সেও গলে পড়ে যাবে, হাড়, সে মাটাও মরে যাবে। কিন্তু সে সেইভাবে, মানে বাচ্চা গেল মানে মাটাও গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন সে তো বাদর আছে, অবুঝ আছে, তোমরা তো মানুষ আছো না। वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर स्मशान तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिरा कर मुँह स्मशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझा कर फिर कहते हैं मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। কবে পর্যন্ত বাবাকে ইয়াদ করব? যতক্ষণ বেঁচে আছি, তাই না? লাস্ট अंतिम निश्वास पर्यंत। तो जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, তাই না? যদি প্রয়োজন না থাকতো তো যেমন 84 জন্ম বাবা ডিস্টার্ব করতে আসেনি, সেরকম এই জন্মেও ডিস্টার্ব করতে আসতো না, তাই না? বাবা বলছে এটার প্রয়োজন আছে, নিজেকে আত্মা মনে করা, বুদ্ধি দুনিয়া থেকে বের করা, বাবার সঙ্গে কানেকশন জোড়া, না হলে পাপকর্ম পানিশমেন্ট খুব কঠিন হয়ে যাবে, খুব সহজে পাপ কাটানো যাবে। बाप को याद करना है, याद में आँखें कभी बंद नहीं करनी है। কি বললো বাবা? যখন যোগ করবে কখনো চোখ বন্ধ করা যাবে না। সন্ন্যাসী লোক आँखें बंद कर बैठते हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে কেন ট্র্যাডিশন রাখলো? যাতে চোখ চঞ্চলতা না করে, এটা দেখলাম ওটা দেখলাম, বুদ্ধিতে সংকল্প চললো। কিন্তু বাবা বলছেন তোমাকে তো বিনাশের মধ্যেও বাবার ইয়াদ করতে হবে, হলচলের মধ্যেও বাবার ইয়াদ করতে হবে। তো প্র্যাকটিস তো এখন থেকে করতে হবে, যে চোখ খোলা অবস্থায়ও আমার চোখ চঞ্চলতা করছে না, বুদ্ধি এক সংকল্পে বাবার কাছে স্থির বসে আছে, সে প্র্যাকটিস তো এখান থেকে করতে হবে। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम, एक आँख में दुख धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। कि करो सारा दिन নিজেকে লাইট হাউস মনে করে থাকবো তো না? এক কানে শুনবো আরেক কানে বের করে দেবো না? থাকবো সারাদিন লাইট হাউস থাকবো तो बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वो तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है यह दुख धाम है, वो है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो बाबा बोलছেন যেই চান্স পাবে সেবা করবে, ছাড়বে না। আর সামনে তো পুজো আসছে না, তো
প্রদর্শনী করতে হবে, কোথায় প্রদর্শনী হবে, কোথায় সেবা করব, কোথায় পাবলিক বেশি আসবে, তো সেটা খবর নিতে হবে, তো সেবার জায়গা ফিক্স করতে হবে, তাই না? यह 3 चित्र किसी को समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देते हैं। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सेल्वेज कर नहीं सकते, वो तो सब हैं आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप बतलाते हैं। वो समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आखिरीन कोई न कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा, यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है, তাই না? যতজন ভগবানকে ভক্তি করছে, তাই না, আর যেই রূপে ভক্তি করছে, দেবী দেবতা রূপে ভক্তি করছে, তো সে ভগবানকে পাবে জরুর, দেবী দেবতা রূপে পাবে, কিন্তু দেবী দেবতা আগে তৈরি হবে তবে তো পাবে, তাই না? तो जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वो बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, তাই না? দেহ থেকে ডিটেচ হতে হবে, আত্মিক স্থিতিতে থাকতে হবে, এই শিক্ষা কোনো গুরু দিতে পারে না। যদিও বা গীতার মধ্যে এটা স্পষ্ট লেখা আছে, আগে আত্মারই জ্ঞান দিয়েছে ভগবান, কিন্তু গুরুরা শুধু পড়ে, প্র্যাকটিক্যাল তো করে না, অন্য কেউ তারা বলবে না। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते, परंतु वो निराकार तो नहीं है, शरीरधारी हैं। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वो तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं, তাই না? এই পৃথিবীতে কত মানুষ, সব আত্মা, सब आत्मार पिता से हलो शिव बाबा। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे। तो একটু বুদ্ধি বেরোচ্ছে, তো ফেসেছিলাম, তাই না? সারাক্ষণ কি ঘুরতো মাথায়, ব্যক্তি ঘুরতো, না হলে বস্তু ঘুরতো, না হলে পরিস্থিতি ঘুরতো, না হলে সম্পত্তি ঘুরতো, তাই না? তো ফেসেই তো ছিল না বুদ্ধি। বাবা এখন বুদ্ধিকে বার করছে, ব্যক্তিকেও ছাড়ো, তাই না? বুদ্ধি থেকে ছাড়ো, কর্তব্য ছাড়বে না, কর্তব্য করে যেতে হবে, সামালও দিতে হবে, তাই না? সব কিছু সামাল দিতে হবে, ব্যক্তি, বস্তু, সম্পত্তি, পরিস্থিতি, সমস্যা সবই সামাল দিতে হবে, পারফেক্টলি সামাল দিতে হবে। কিন্তু বুদ্ধির ডিটেচ যে এই সবগুলো হলো কর্তব্য, কাজ মিটবে, এখান থেকে আমাকে যেতে হবে। কত রথী মহারথী আসলো, কত বড় বড় কাজ করলো, আবার এই পৃথিবী থেকে চলেও গেল, তাই না? আর মানুষেরা তাদেরকে ভুলেও গেল। তো সেই রকম আমরাও এসেছি, কর্তব্য করব, একদিন এই দুনিয়া থেকে আমরাও চলে যাব, তাই না? দুনিয়ার মানুষ আমাদেরও ভুলে যাবে, তাই না? এটাই সৃষ্টির নিয়ম, এ তো কর্মক্ষেত্র। तो अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। যদি নিজের বুদ্ধিগুলো নিজে বের করব না, ব্যক্তি, বস্তু, সম্পত্তি, পরিস্থিতির মধ্যে ফেসে থাকব, তো বাবা বলছেন লাস্টে পানিশমেন্ট খেয়ে বুদ্ধি ফ্রি হবে, তাই না? বৈরাগী হয়েই তো যেতে হবে। এবার যার নিজের থেকে বৈরাগ্য আসলো ভালো, না আসলো তো পানিশমেন্ট দিয়ে,
তাই না? যেরকম ধরো কেউ খেতে খুব ভালোবাসে, তাই না? এমন রোগ হলো সে সেটা খেলেই অসুখ করবে, তো অটোমেটিক কী হবে? নিজে ছাড়বে না তো অসুখ হয়ে কষ্ট হয়ে ছাড়বে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে ভালো নিজের বুদ্ধিকে নিজে বের করো। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है। मानी माना रूटी, मोचरा माने जूतो, जूतो मार খেয়ে রুটি খাবো, তো সে রুটি খাওয়াতে মজা আছে। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, তাই না? বাবা বলছেন হয়তো প্রচুর সেবা করেছি, বড় উঁচু পদের অধিকারী হবার মতন অনেক যোগ্যতা লাভ করেছি, কিন্তু যদি কোয়ালিটি নেই, ধারণা নেই, তাহলে সেই যোগ্য যে করবে, সেই রাজ্য পদ যে দেবে, তার আগে পানিশমেন্ট খেতে হবে, জুতো খেতে হবে, তাই না? ওই জন্যে সেবাও হবে, তো সাথে ধারণা মূলত চাই, জ্ঞানযোগও চাই, চারটে সাবজেক্টের ব্যালেন্সে চাই। तो मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी रोटी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा सजा तो मानी अच्छी मिलेगी, यह है कांटों का जंगल, তাই না? পানিশমেন্ট যদি হালকার উপর খাবে তো ঠিক আছে, বেশি রুটি পাবে, তাই না? আর বেশি পানিশমেন্ট খাবে তো রুটি খাবার মজাও পাবে না। রুটি মানে হচ্ছে পথ। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। দুনিয়ার দিকে তো তাকালে বুঝবেই যে কীরকম মানুষ মানুষকে ঠকায়, কীরকম মানুষ মানুষকে কষ্ট দিতে চায়, তাই না? কীরকম লুটতে চায়, কীরকম ছলচাতুরি করে, তাই না? তো বাবার বাচ্চার মধ্যে এই গুণ তো, আর যদি এই গুণ বাবার বাচ্চার মধ্যে থাকে তো বাবার সিলেকশন লিস্ট থেকে বাবা বের করে দেবে, বলবে তাহলে তুমি তেতা যুগে আসো, তোমার সত্যযুগে স্থান হবে না, কেননা বাবার স্কুলে ফেল কেউ হবে না, যে ফেল হবে তার জন্যে তেতা যুগ আছে, আর ফেল তো বেশিরভাগ হবে, তাই না? তো সব এক দো কো কাঁটা লাগাতে रहते हैं, তো বাবার বাচ্চাদেরকে কি হতে হবে? ফুল হতে হবে, সুখ देने वाला। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था, कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं, बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते। বাবা বলছেন হয়তো স্বর্গের সাক্ষাৎকারও করে নিল, কিন্তু কি ফায়দা যদি সে যোগ্যতা এলো না, আর আমি যদি স্বর্গে যেতে পারলাম না, তো সাক্ষাৎকার করে লাভটা কী হলো? এই জন্যে বাবা বলছেন সাক্ষাৎকারের আশায় থাকো না, সাক্ষাৎকার লাস্টের সময় প্রচুর হবে, দিন রাত সাক্ষাৎকার হবে, কিন্তু আগে যোগ্যতা তৈরি করো। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो आ न सके, देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन, यह है पतित, पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं, यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, देवता धर्म का कलम ही नहीं रखते। हम बच्चों को मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं, তাই না? ভগবান নিজে আমাদেরকে লাডলা বাচ্চা বলেছে, মিঠে মিঠে সিকিলধে বাচ্চা বলেছে, আর সে নিজে আমাদেরকে দেবী দেবতা তৈরি করছে, তাই না? সে নিজে মেহনত করছে আমাদের পিছনে। তো বাবা বলছেন तो हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं, तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे, তাই না? লোকেরা ভাবে না কৃষ্ণ আসবে, প্রমিস দিয়েছে, তাই না? কৃষ্ণ পবিত্র আত্মা, সে কোথায় থেকে আসবে এই বিকারি দুনিয়াতে? আসলে তো কোনো মায়ের গর্ভে আসতে হবে, তো মা বাপগুলোই তো পতিত ভিখারি, সে আর পবিত্র শরীর পাবে কোথায়?
बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसीलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो सब हैं आसुरी दुनिया में, তাই না? তো কৃষ্ণ তো এসেই গেছে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা রূপে এসেছে, তাই না? কেননা পতিত বিকারী দুনিয়াতে তো পতিত বিকারী শরীরেই তো আসবে आत्मा। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में हैं। तो কোন সংসারে আছি? না দেবতা হয়েছি না অসুর আছি, তো কিসেতে আসি? ভগবানের হাত ধরেছি, এবার মাঝে মাঝে দেবতার টানটা বেশি, মাঝে মাঝে অসুরের টানটা বেশি, কোন প্রভাবটা বেশি? দেবতার প্রভাবটা বেশি না অসুরের প্রভাবটা বেশি? নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, কার প্রভাবে থাকি সারাদিন, দেবতার না অসুরের, তাই না? ঈশ্বরের না শয়তানের, कार प्रभाव हमारे ऊपर बेशी। तो यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। तो शिवेर मंदिर हलो सबचेये ऊपरे परम धाम। बाबा बोलছে আমি আমার मंदिर ছেড়ে এখানে তোমাদের কাছে এসেছি। तो भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। तुम बनते हो, हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। আমরা কীরকম স্টুডেন্ট? বাবার প্রাইজ পানেওয়ালা স্টুডেন্ট না বাবার থেকে জুতো খানেওয়ালা মোচড়া খানেওয়ালা স্টুডেंट? कौन स्टूडेंट? कि प्राइज लेने वाला तो ना जूतो खाने वाला? तो बाबा बोलचेन वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। তাই না? বাবা ডিউটি দিয়েছে না নিমিত্ত আত্মাগুলোকে ভালো করে ইন্টারভিউ নিতে হবে, কড়া করে ইন্টারভিউ নিয়ে তারপরে ইন্দ্র সভাতে পাঠাতে হবে, তাই না? বাবা মিলনে যেমন তেমন কেউ যেতে পারবে না, ভালো করে স্ট্রং হতে হবে, পবিত্র আত্মা হতে হবে। ऐसे ऐसे तो तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। অন্যকে উদ্ধার করতে যাবে আর নিজে ডুবে যাবে, তো চলবে? বাবা বলছেন এত শক্তিশালী হতে হবে যে কোনো কিছুর প্রভাব আমার উপরে পড়বে না, তাই না? दूसरा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में
अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। शरीर से डिटैच होने का शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आँखें खोल कर बैठना है। याद में आँखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। तो बाबा बोलছেন बार बार अटेंशन प्लीज कि মনে করাতে হবে নিজেকে আমি শরীর থেকে ডিটেচ, আলাদা, শান্ত স্বরূপ আত্মা, ডবল লাইট ফরিস্তা, তাই না, লাইট হাউস फरिश्ता। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, और भी अंडरलाइन करो। तो किसेर ऊपर अटेंशन दीते बोलছেন बाबा? दृष्टिओ पवित्र और वृत्ति माना इच्छागुलो पवित्र। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। तो संकल्प केमन होते चाहिए? पवित्र शुद्ध होते चाहिए, ज्ञानपूर्ण होते चाहिए और शक्तिशाली पावरफुल संकल्प, स्वमानेर संकल्प होते चाहिए। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। बाबा कमप्लेन করছেন মাঝে মাঝে সংকল্পগুলো কমজোর হয়ে যাচ্ছে, আমার দ্বারা হচ্ছে না, আমার দ্বারা হবে না, আমি পেরে উঠছি না। এগুলো হলো সব কমজোর संकल्प। तो बाबा बोलছেন संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, इस कमजोरी को भी समाप्त करो। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो बाबा बोलছেন कमजोर संकल्प समाप्त करो। सब समय भाबते হবে হবে আমার দ্বারাই হবে, আর হচ্ছে, আমি পারছি, একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি।
তাই না? এরকম সংকল্প করতে হবে। স্লোগান, दृष्टि में सबके प्रति रहम, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो, तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता, तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। তো বাবা বলছেন কেউ ইনসাল্ট করলো, অপমান করলো, তো আমার কিচ্ছু হবে না। মনে মনে কি ভাববো, নিশ্চয়ই কোনো ঘা খেয়েছে, আমার থেকেই খেয়েছে, এই জন্মে হোক আগের জন্মে হোক, আমার থেকে কোনো সময় ঘা খেয়েছে বা অন্যের থেকে খেয়েছে, এটা হলো তার প্রতিক্রিয়া, তাই না? এটাতে আমার কোনো দোষ নেই, তাই সেটা আমার জন্যে নয়, অ্যাকসেপ্টই করতে হবে না, তাই না? ট্রান্সফার টু বাবা। পারবো তো? না আমাকে এইরকম বলল, তাই না? আসলে ও তো ভিতরে ইমব্যালেন্স, তাই না? ও তো ঘা খাওয়া, তো তাকে ক্ষমা করো, তাই না? তো পারবো তো এই হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করতে, না কঠিন আছে? কেউ ইনসাল্ট করবে আর আমার রিয়েকশনও হবে না, পারবো তো? না রিয়েকশন হবে? সবাই ভাবছে, হ্যাঁ কি পারবো তো? পারতেই হবে। বাবা বরদান দিল না যে হয়ে গেল, এখন থেকে হয়ে গেল, বাবা বলে দিল বেশ, এবার যে যা অপমান করুক আমার কোনো সব সময় তার প্রতি শুভ ভাবনা, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।